So now I want to request Nasir Mahmood Sahib, Naib Sadr Majlis Ansarullah Canada, to introduce Mubarak Siddiqui Sahib. So we can start the Sham-e Sukhan. Jazakallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اس آکر کو ابتدائی اور تعارف کا حکم ہوا تو خدا معلوم کہاں سے مگر ذہن کے کسی گمنام گوشے سے ایک شعر نکھر کر سامنے آ گیا اور میرا مسئلہ حل ہو گیا. وہ شعر کچھ یوں ہے: میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے، میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. محترم صدیقی صاحب کا طرز کلام اور انداز بیان دونوں قبولیت عامہ کا درجہ پا چکا ہے. آپ کی تحریر میں کہیں گہری فکر دکھائی دیتی ہے اور کہیں بے نیازی کا اپنا انداز، کہیں مزاح کا چلبلا پن ہے تو کہیں طنز کے نشتر اپنی کمانوں سے جدا ہوا چاہتے ہیں. مگر ان تمام حقائق سے بہت بڑھ کر اور بالاتر یہ حقیقت ہے کہ یہ وہ کلام ہے جسے خلافت کی مسکراہٹ نصیب ہوئی، جو ہمارے لیے سب سے زیادہ محترم اور معتبر ہے. مجلس انصار اللہ کینیڈا کی طرف سے میں اپنے معزز مہمان کا مشکور بھی ہوں اور ممنون بھی، اور ان کے لیے دعا گو بھی کہ تمام روزگار عزیز کو پس پشت ڈال کے طویل مسافت اختیار کی. چندہ معاملات کچھ اس نوعیت کے تھے جو متقاضی تھے کہ آپ انگلستان میں ہی ٹھہرے رہتے. بہرطور آپ نے ہماری عزت افزائی فرمائی. خدا تعالیٰ ہر دو جہاں میں آپ کی عزت افزائی فرمائے. جہاں تک اس نشست کی تربیتی حیت کا تعلق ہے، اس کا خاکہ کچھ یوں ہے کہ آغاز میں انشاءاللہ ہم کچھ ذکر یار کریں گے. جیسا عبید اللہ علیم نے کہا کہ نور و نہلائے ہوئے قامت گلزار کے پاس ایک عجب چھاؤں میں ہم بیٹھے رہے یار کے پاس. تو خدا تعالیٰ کا بڑا فضل، کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمارے اس معزز مہمان کو بارہا دفعہ اس چھاؤں کی مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائی. انوار خلافت کی کچھ برکات کے فیوز ہم بھی حاصل کریں گے، اور اس کے بعد اس مجلس کے دوسرے حصے میں احباب کی سماعتوں کی مزید تزئین کے لیے سخنوری کے موتی بکھیرے جائیں گے. سو حضرات، اس نشست کے مہمان اول مکرم مبارک احمد صدیقی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار مکرمہ محترم صدر صاحب انصار اللہ کا اور محترم نائب صدر صاحب ناصر صاحب کا بے حد شکر گزار ہے کہ آپ سے ملاقات کا شرف مل رہا ہے. آپ خطاب فرما رہے تھے، تقریر تھی، اب کچھ ہم شعر و شاعری کی طرف آ رہے ہیں. تو میری درخواست ہے کہ تقریر میں اور شعر و شاعری میں تھوڑا سا فرق ضرور رہنا چاہیے. شعر و شاعری میں ایسے ہے کہ اگر کبھی کبھی جو ہے وہ سامعین کی طرف سے دوبارہ یا واہ واہ کی آواز آتی رہے تو پتہ چلتا ہے کہ شعری مجلس ہے. لیکن دوبارہ ایسا بھی نہ ہو کہ وہ ایک شاعر تھے، انہوں نے پہلا شعر پڑھا تو حال میں آوازیں آنی شروع ہو گئیں، دوبارہ دوبارہ دوبارہ. بہت خوش ہوئے، انہوں نے دوبارہ پڑھا، پھر آواز آئی دوبارہ دوبارہ دوبارہ. بہت خوش ہوئے، پھر پڑھا، پھر احباب کی طرف سے دوبارہ دوبارہ. انہوں نے کہا کہ اب اگلا شعر بھی سن لیں. انہوں نے کہا نہیں، پہلے اسے ٹھیک طریقے سے پڑھیں آپ. اور خاموشی ایسی بھی نہ ہو کہ ایک شاعر وہ کوئی 10 اشعار والی غزل لے کے اسٹیج پہ آئے، پہلا شعر پڑھا، لوگ بالکل چپ،
दूसरा शेर पढ़ा, बिल्कुल चुप। तीसरा शेर पढ़ा, लोग बिल्कुल चुप। तो उन्होंने शायरी को तय करके जेब में डाला, कहते अच्छा खुदा हाफिज़, बाकी 7 शेर भी तकरीबन इसी किस्म के ही हैं। मेरे एक दोस्त बड़े प्यारे हैं। एक दफ़ा मैंने उनसे पूछा कि तखल्लुस में क्या रखूं शायरी में। वो कहते कि आप हयात रख लें। तो मैंने कहा ये मुनासिब नहीं लगेगा, क्योंकि जब मैं शेर सुनाऊंगा लोग कहेंगे वाह हयात, वाह हयात, वाह हयात। तो इसलिए मैंने वो तखल्लुस बहरहाल छोड़ दिया है। मुशायरे में बड़े बड़े प्यारे लोग भी होते हैं, बाज़ शायरी सुनने के लिए आए होते हैं, बाज़ कुछ आराम करने के लिए आए होते हैं कि दिन भर के थके हुए हैं। मैं एक जगह मैं अशार सुना रहा था, तो सामने एक दोस्त सोए हुए बाकायदा खराटे ले रहे थे। तो बाद में मैंने एक दोस्त को कहा कि यार वो साहब अजीब थे, उन्हें शेर व शायरी से कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो खराटे ले रहे थे। तो वो कहते कि हाँ यार वाकई उनको अदब से कोई दिलचस्पी नहीं थी, उनके खराटों की वजह से 2 मरतबा तो मेरी आँख खुल गई थी। तो बहरहाल शायर को समझा यही जाता है कि शायद बड़ी सहूलतें हैं, हालांकि शायर को बाज़ औक़ात बड़ी अजीब व गरीब सिचुएशन का भी सामना करना पड़ता है। जैसे आज ही मैं आबिद साहब के साथ और जमशेद साहब के साथ आ रहा था, तो जमशेद साहब से मैंने पूछा कि कितने बजे प्रोग्राम है। वो कहते कि पहले सोहबत सालेहीन है, फिर आपके साथ है। तो मैंने कहा जमशेद साहब बड़ा शुक्रिया आपकी इतला देने का, थोड़ा सा ज़रा उसमें। तो मैंने अर्ज़ किया कि ऐसे आ जाता है। एक जगह मैं मुशायरे के लिए गया, तो मुशायरे से पहले जो कुछ लोग खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे, जैसे मुशायरे से पहले होता है ना, चाय पी रहे थे, खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे। तो वो जो मुंतज़िम थे वो मेरे पास आए, कहते मुबारक साहब क्या ख़्याल है, लोगों को थोड़ी देर और खुश रहने दिया जाए कि आपका मुशायरा शुरू करवाएं। पर मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, आपको पता है मैं मिज़ाह में भी लिखता हूँ और संजीदा भी। आज चूँकि ये अंसारुल्लाह का इज्तिमा है, तो मैं सिर्फ संजीदा शेर ही पढ़ूँगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं संजीदा ही पढ़ूँगा। एक जगह मैंने संजीदा शेर पढ़ा, तो मेरे साथ बैठे हुए दोस्त की हंसी निकल गई। मैंने उसे बताया कि ये संजीदा है, फिर जाके उसकी आंखों में आंसू आए थोड़े से। पर कुछ और सच्ची बात है, मुशायरे में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कई लोग तो बड़ी मोहब्बत से आए होते हैं, कई दोस्त इस तरह भी आए होते हैं। मैंने एक दोस्त को मुशायरे के बाद कहा, मैंने कहा कि यार आपको अदब से बड़ी दिलचस्पी है, आप बड़ी देर बैठे रहे। कहते नहीं जी बात ये है मैं तो जिसके साथ कार में आया था वो नहीं मुझे मिल रहा था बंदा। तो हर किस्म के और ये हकीकत, एक दफ़ा एक बच्चे को मैंने, सदर साहब, एक बच्चे को मैंने कहा बेटे आपको शायरी से इतनी दिलचस्पी है कि आप सारे मुशायरे में बैठे रहे। कहता नहीं अंकल, वो दरवाजे पे एक अंकल खड़े हैं, वो किसी को भी नहीं जाने दे रहे। तो कि किसे हिजरतों का मलाल है, किसे फुरकतों का ख्याल है, जो गुज़र गई तेरी याद में वही शाम शाम विसाल है। किसे हिजरतों का मलाल है, किसे फुरकतों का ख्याल है, जो गुज़र गई तेरी याद में वही शाम शाम विसाल है। मेरा ख्वाब था किसी रोज़ तो, मेरा ख्वाब था किसी रोज़ तो, मेरी मुंतज़िर यूं बहार हो, जो उठे निगाह झुकी हुई
मेरे रूबरू रुखे यार हो। वही यार के वो जिधर चले वहाँ रोशनी का नज़ूल हो। वही यार के वो जिधर चले वहाँ रोशनी का नज़ूल हो। जो लिखे वो हर्फ मुजीब हो, जो करे दुआ वो कबूल हो। वही यार के वो जिधर चले वहाँ रोशनी का नज़ूल हो। जो लिखे वो हर्फ मुजीब हो, जो करे दुआ वो कबूल हो। वो शगुफ्ता गुल के जिसे छुए वही शाख सब्ज़ गुलाब हो। वो शगुफ्ता गुल के जिसे छुए वही शाख सब्ज़ गुलाब हो। जिसे सोचने की जज़ा मिले, जिसे देखना भी सवाब हो। उसे शायरी से हो गर शगफ मेरा लहजा मिसले फराज हो। उसे जाहिदों से हो प्यार तो मेरी हर कदम पे नमाज हो। कभी यूं भी हो वो मुझे कहे तेरी सब दुआएं कबूल हैं। तेरे रत जगे हैं सुने गए, तेरे खार आज से फूल हैं। कभी यूं भी हो सरे बज़्म वो मुझे ये कहे कि गज़ल सुना। कभी यूं भी हो सरे बज़्म वो मुझे ये कहे कि गज़ल सुना। मैं गज़ल गज़ल में उसे कहूँ मेरा कुछ नहीं है तेरे सिवा। कभी यूं भी हो सरे बज़्म वो मुझे ये कहे कि गज़ल सुना। मैं गज़ल गज़ल में उसे कहूँ मेरा कुछ नहीं है तेरे सिवा। कोई दम दरूद वो करके जो मेरे कल्बो जाँ को निखार दे। वो दुआ भी दे मुझे प्यार से मेरे दो जहां जो सवार दे। अब कुछ 2-3 गज़लें सुनाता हूँ, फिर आपके बेहद इसरार पे कुछ और गज़लें सुनाऊंगा। अर्ज़ किया है कि माना कि वो भी आज तक माना तो है नहीं। माना कि वो भी आज तक माना तो है नहीं। हमने भी उसके शहर से जाना तो है नहीं। अब मुझे ये ना कहना पड़े कि बाकी 7 अशार भी इसी किस्म की हैं। माना कि वो भी आज तक माना तो है नहीं। हमने भी उसके शहर से जाना तो है नहीं। और रखी है कुएं यार की मट्टी संभाल के, इससे बड़ा ज़मीं पे ख़जाना तो है नहीं। रखी है कुएं यार की मट्टी संभाल के, इससे बड़ा ज़मीं पे ख़जाना तो है नहीं। और कुछ लोग तेरे शहर के खंजर बदस्त हैं। कुछ लोग तेरे शहर के खंजर बदस्त हैं। कुछ हमने बाज इश्क से आना तो है नहीं। कुछ हमने बाज इश्क से आना तो है नहीं। और कहते हैं लोग उनसे कहो जाके हाले दिल। कहते हैं लोग उनसे कहो जाके हाले दिल। कहते हैं लोग उनसे कहो जाके हाले दिल। अब हमने अपनी जान से जाना तो है नहीं। कहते हैं लोग उनसे कहो जाके हाले दिल। अब हमने अपनी जान से जाना तो है नहीं। और जुर्मे वफा पे लाए हैं मक्तल में वो हमें। अब उनके पास और बहाना तो है नहीं। और अर्ज़ किया है सदर साहब के मिलते हैं जिस खुलूस से हम हर किसी के साथ। मिलते हैं जिस खुलूस से हम हर किसी के साथ। वैसे ये इस तरह का ज़माना तो है नहीं। मिलते हैं जिस खुलूस से हम हर किसी के साथ। वैसे ये इस तरह का ज़माना तो है नहीं। और कुछ इसलिए भी आज तक रूठे नहीं हैं हम। बड़ा दर्दनाक शेर है जी कि कुछ इसलिए भी आज तक रूठे नहीं हैं हम। आके हमें किसी ने मनाना तो है नहीं। रखी है कुएं यार की मट्टी संभाल के, इससे बड़ा ज़मीं पे ख़जाना तो है नहीं। अब चूँकि आप इसरार कर रहे हैं तो एक और गज़ल मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि दुआ की लौ से मैं दिए जलाने वाला हूँ। दुआ की लौ से मैं दिए जलाने वाला हूँ। मैं कुएं यार में
जान भी लुटाने वाला हूँ। ये फूल उसने मुझे बेसबब नहीं भेजे, ये फूल उसने मुझे बेसबब नहीं भेजे। मैं उसकी राह से कांटे उठाने वाला हूँ, मैं उसकी राह से कांटे उठाने वाला हूँ। और मेरे कबीले में अहदो वफा ही सब कुछ है, मेरे कबीले में अहदो वफा ही सब कुछ है। सो जान दे के मैं वादा निभाने वाला हूँ। और मैं तेरे इश्क में दुनिया तो छोड़ दूँ, लेकिन मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ। मैं तेरे इश्क में दुनिया तो छोड़ दूँ, लेकिन मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ। और कुछ इसलिए भी ज़माने तेरी मेरी न बनी, कुछ इसलिए भी ज़माने तेरी मेरी न बनी। तू दिल का चैन मैं आंसू चुराने वाला हूँ, तू दिल का चैन मैं आंसू चुराने वाला हूँ। और मैं तेरे हाथ की तहरीर क्या करूँ कि तू, मैं तेरे हाथ की तहरीर क्या करूं कि तू मुकर गया तो मैं किसको दिखाने वाला हूँ, मुकर गया तो मैं किसको दिखाने वाला हूँ। ये और बात के अब उसको मेरी याद आई, ये और बात मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। दुआ की लौ से मैं दिए जलाने वाला हूँ। अब इंशाल्लाह कुछ और भी हैं, लेकिन चूँकि आप मजबूर कर रहे हैं, जी जी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आज सिर्फ संजीदा शायरी हो, ताकि उसमें जज़ाकल्लाह शुज़ा। आप वो भी हिजर फसाना दिल में रखने वाला नहीं, वो भी हिजर फसाना दिल में रखने वाला नहीं। मैं भी कौल करार से पीछे हटने वाला नहीं। और वस्ल का रास्ता कांटों वाला जानता हूँ सो मैं, वस्ल का रास्ता कांटों वाला जानता हूँ सो मैं। दिल की चोटें पैर के छाले गिनने वाला नहीं। और रंग सुनहरा जगमग आँखें सुंदर रूप स्वरूप, ऐसे कातिल हमले में मैं बचने वाला नहीं, ऐसे कातिल हमले में मैं बचने वाला नहीं। और उसको भी दरबार में देखा जोड़े दोनों हाथ, वो जो अक्सर कहता था मैं बिकने वाला नहीं। और उससे कहना जीतना है तो प्यार से मुझसे जीत, तूने खंजर पकड़ा तो मैं हारने वाला नहीं। और काश मुझे वो चांद कहे आ मेरे पास भी बैठ, काश मुझे वो चांद कहे आ मेरे पास भी बैठ। वैसे जब मैं बैठ गया तो उठने वाला नहीं। और मैंने उसको अपने खून से लिखा इश्क का ख़त, उसने वापस जो लिखा वो पढ़ने वाला नहीं। आपने किसी दोस्त ने कहा कि दुश्मनों से बात हमसे यारियां वालिया है, तो ये आखिरी है और उसके बाद फिर हम कुछ होगी। ये है कि जी दुश्मनों से बात हमसे यारियां, दुश्मनों से बात हमसे यारियां, छोड़ दे ऐ दोस्त ये फनकारियां। दुश्मनों से बात हमसे यारियां, छोड़ दे ऐ दोस्त ये फनकारियां। और कौन होता है किसी का उम्र भर, मैं अभी तक दिल को ये समझा रियां। और उस मेरे पाँव में थे मजबूरी के जाल,
وہ سمجھتا تھا میں لارے لاریاں، اور ایک باجی کو تھا آنٹی کہہ دیا، آج تک وہ کیس میں بھگتاریاں، آج تک وہ کیس میں بھگتاریاں، اور دشمنے جا سوچ لے پھر سوچ لے، ایک دن آنی ہے میری واریاں، اور اتنی بھی سادہ میری صورت نہ تھی جتنی اس ظالم نے چیخاں ماریاں، اور دشمنے جہاں سوچ لے پھر سوچ لے، ایک دن آنی ہے میری واریاں، اور وہ جو میک اپ میں مجھے پیرس لگی، جب ہوئی بارش تو نکلی کھاریاں، اور آج بھی تو نے اگر نہ داد دی، آج بھی تو نے اگر نہ داد دی، میں تیری محفل سے اٹھ کے جا رہی ہوں، دشمنوں سے بات ہم سے یار، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جن کی گلیوں میں کانٹے بچھائے گئے، جن کی گلیوں میں کانٹے بچھائے گئے، جن کے بستے ہوئے گھر جلائے گئے، وہ جو ہر دور میں آزمائے گئے، بے گناہ جو لہو میں نہائے گئے، ہم وہی لوگ ہیں، ہم وہی لوگ ہیں، وہ جو رسم وفا کی نبھا کے چلے، وہ جو رسم وفا کی نبھا کے چلے، اپنے پیاروں شہر جانا کو سب کچھ لوٹا کے چلے، وہ جو رسم وفا کی نبھا کے چلے، شہر جانا کو سب کچھ لوٹا کے چلے، اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا کے چلے، ہر قدم ضبط غم آزما کے چلے، ہم وہی لوگ ہیں، ہم وہی لوگ ہیں، وہ جو قصوں کتابوں میں مشہور تھے، وہ جو قصوں کتابوں میں مشہور تھے، وہ جو حق بات کہنے پہ معمور تھے، وہ جو محصور تھے، وہ جو مجبور تھے، وہ جو سکرات تھے، وہ جو منصور تھے، ہم وہی لوگ ہیں، ہم وہی لوگ ہیں، وہ جنہوں نے جفاؤں کو مانا نہیں، 4 دن کے خداؤں کو مانا نہیں، وہ جنہوں نے جفاؤں کو مانا نہیں، 4 دن کے خداؤں کو مانا نہیں، قاتلوں بے وفاؤں کو مانا نہیں، جبر کی انتہاؤں کو مانا نہیں، وہ جو حرف وفا معتبر کر گئے، یوں جلے شب نگر میں سحر کر گئے، وہ جو اجڑے چمن باسمر کر گئے، عشق اپنے لہو سے امر کر گئے، ہم وہی لوگ ہیں، ہم وہی لوگ ہیں۔ نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ، شہیدان احمدیت، اسیران راہ مولا، نعرہ تکبیر۔ کہ ہم تھے گلاب لوگ اور تیشہ بدست وہ، ہم تھے گلاب لوگ اور تیشہ بدست وہ، نکلے تھے کر کے ظلم کے سب بندوبست وہ، سمجھے تھے کم نگاہ کے لکھتے ہیں بخت وہ، ہم تھے گلاب لوگ اور تیشہ بدست وہ، نکلے تھے کر کے ظلم کے سب بندوبست وہ، سمجھے تھے کم نگاہ کے لکھتے ہیں بخت وہ، حاکم تھے اور صاحبان تاج و تخت وہ، پھر یوں ہوا کہ کھا گئے سارے شکست وہ، ہم ایک جان آج بھی اور لخت لخت وہ، اپنا یہی تھا جرم کہ نظریں ملا کے ہم، اپنا یہی تھا جرم کہ نظریں ملا کے ہم، نکلے تھے شب کے روبرو سورج اٹھا کے ہم، اس دل کے تار تار میں قرآن بسا کے ہم، نیزوں کے درمیان بھی سینے سجا کے ہم، موسم لہو لہو تھا مگر مسکرا کے ہم، چلتے تھے کوئے یار کو پلکیں بچھا کے ہم، بیٹھے تھے موڑ موڑ پہ پہرے بٹھا کے وہ،
बैठे थे मोड़ मोड़ पे पहरे बिठा के वो, निकले थे गाम गाम से परचम उठा के हम, चलते थे ताक ताक से शम्मा बुझा के वो, रखते थे बाम बाम पे तारे सजा के हम, चलते थे शाख शाख से जुगनू उड़ा के वो, रखते थे डाल डाल पे महताब ला के हम, करने चले थे रोशनी नाबूद व नस्त वो, कातिल थे और कातिलों के सर परस्त वो, पहुँचे थे अपने जोम में अफलाके हफ्त वो, हम महले दिल थे और थे मौका परस्त वो, हाकिम थे और साहिबाने ताजो तख्त वो, फिर यूं हुआ कि खा गए सारे शिकस्त वो, हम एक जान आज भी और लख्त लख्त वो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, इस्लाम अहमदियत, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा गुलाम अहमद की, खिलाफत अहमदिया, हजरत खलीफतुल मसीहिल खामिस, नारे तकबीर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह। आइंस्टाइन एक दफ़ा पाकिस्तान गया। अच्छा, पहले तो इसी बात पे लोग हंसते हैं कि किधर आइंस्टाइन और किधर पाकिस्तान। उसने सोचा कि मैं इतना इंटेलिजेंट आदमी हूँ, क्यों ना वापसी का किराया ही बना लूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट आदमी हूँ। तो उसने एक लाहौर का बंदा था, उसे रोका। उसने कहा आपको पता है मैं कौन? उसने कहा आइंस्टाइन दुनिया के। उसने कहा कि यार मेरे साथ आओ, क्विज़ खेलते हैं। आप एक सवाल पूछें मुझसे, मैं एक सवाल, जो भी ना बता सके वो उसे $100 देगा। उसने कहा जी आप आइंस्टाइन, मैं लाहौर का आम सा आदमी हूँ, मेरा और आपका क्या मुकाबला है? उसने कहा नहीं नहीं फिर भी कोशिश करो। उसने कहा अच्छा, एक आइंस्टाइन ने कहा अच्छा ऐसे करते हैं। उसने उसको टेम्पटेशन देने के लिए उसने कहा कि अगर तुम मुझसे कोई सवाल पूछो, मैं ना जवाब दे सका तो मैं तुम्हें $1000 दूंगा, और तुम मेरे से सवाल, मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, अगर तुम जवाब ना दे सके तो तुम मुझे $100 दे देना। अब ये बंदा कुछ टेम्पटेशन हो गई इसको। इसने कहा, वो जो लाहौर का बंदा था, उसने आइंस्टाइन को कहा कि अच्छा ये बताएं वो कौन सा जानवर है जो जब पहाड़ी पे चढ़ता है तो उसकी 3 टांगें होती हैं और जब नीचे उतरता है तो 6 होती हैं। अब आइंस्टाइन सोचने लग पड़ा कि ये कौन सा जानवर हो सकता है। सोच सोच के कहता नहीं, जवाब नहीं पता, ये लो $1000। अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ। इसने कहा मैं इससे कोई मुश्किल सा पूछता हूँ। कहता अच्छा मैं ग्रेविटी से मुतल्लिक, या कहता अच्छा चलो ग्रेविटी का रहने दो, ये बताओ, तुम मुझे बताओ वो कौन सा जानवर है जो पहाड़ पे जाता है तो उसकी 3 टांगें होती हैं, नीचे उतरता है तो 6 टांगें होती हैं। कहता पता नहीं जी, ये लो 100 पाउंड अपना। नॉर्वे में हम जब गए तो रात के 11 बज गए मुशायरे के बाद। तो अमीर साहब ने कहा कि आपने चूँकि कल सुबह चले जाना है तो आप ये बताएं कि आपको शहर की सैर करवाई जाए या एक जगह है जहाँ पे जंगल सा है, जहाँ भेड़िए भी होते हैं, हिरन भी होते हैं, गन्स लेके जाते हैं, वहाँ पे शिकार करते हैं, तो वहाँ पे जाना है कि शहर देखना है। तो हमने कहा कि शहर तो चूँकि देखते रहते हैं, ये वाली कोई नई जगह है, ठीक है इधर जाते हैं। अच्छा ये जो बात बताने लगा हूँ इसमें बाहर एक छोटा सा लतीफ़ा है, असल बात बाद में बता। तो लतीफ़ा ये है कि जब अंदर गए ना हम, तो वाकई 1-2 दफ़ा वो भेड़ियों के गुर्राने की आवाज़ आई। तो जो मेरे साथ दूसरे शायर थे, वैसे मैं भी डर रहा था लेकिन वो मेरे से ज़्यादा डर रहे थे। तो वो बार बार उनको कह रहे थे, वो जो साथ खुदाम थे 4-5 गन्स थी उनके हाथ में, ये बार बार उनको कह रहे थे कि आपको पता है ना कि हम मरकज़ी मेहमान हैं। तो
انہوں نے کہا آپ بالکل بے فکر رہیں, 2 بندے ادھر ہیں 2 ادھر ہیں, ایک آگے ایک پیچھے, گنز ہیں, آپ بے فکر رہیں. تھوڑا سا آگے جا کے اس نے پھر کہا کہ پھر گرانے کی آواز آئی تو پھر ڈر گئے, کہتے آپ کو پتہ ہے نا ہم مرکزی مہمان ہیں. تو وہ ایک لڑکے نے کہا کہ جی ہمیں تو پتہ ہے, بھیڑیوں کو نہیں پتہ.